But growth without innovation and without sustainability is not going to lead us to further growth. And the exhibition that we are going to organize, which is being launched today and where 50 plus countries are going to attend, is going to be just one step in that direction. You are going to, all of us are going to learn about new innovation. We are going to learn about sustainability, about how to make our processes and our systems more sustainable, more in sync with the global realities and with the legal provisions within our country. We are going to learn that. And I will just keep on this, and I'll keep myself very short. A couple of things on this, on innovate, sustain, and grow. So, a few points. One thing that I have realized after coming here is that probably we do not collaborate enough on many issues. One of those is, of course, the R&D, about not only creating new technology but also disseminating that. And I understand that it's a question of commercial interests as well. However, we also need to be open to the idea of dissemination of technology, dissemination of new products, and we welcome you to collaborate with the department and with others. In fact, this morning, Honorable Minister took a meeting with the major oil producing companies and with the Department of Science and Technology on how we can look at providing more locally made in India raw material and feedstock for the downstream industries like the plastic industry. So that is something which is going to happen and for which we need your inputs. So that was point one, that we need to collaborate more on R&D, on innovation, on new technology and on new products. The second issue, of course, is of sustainability. And today, sustainability is not just about processes. Of course, it is about processes, but it is processes plus. And the plus comes from use of technology, use of, you mentioned about AI, about robotics. And India has such a core strength in all these things. That is something that we should be tapping for this industry so that tomorrow we should be world leaders in development of new technology, new products, adding value to them, making them sustainable, so that the taint that is there with the plastics industry in people's minds is removed. So that is another thing that we need to do. I request you to think about it and maybe come out with a solution, and we can work together on that. Can we do that? Can we do some kind of an institutional support system for the existing MSMEs also in different things? The next thing, and I'm sure this the exhibition is going to help us in that quite a lot, is innovation in high value plastics. Not just the mass consumption, which is also required, but where the strategic interests of our country lie. So the high value, high strategic interest plastics, let us also start looking at that. Let's see what is required for that, and whatever is required, let's identify those doables and let's move together. We are there for you. Now, lastly, I would just like to emphasize that, again, learning from COVID, it's been an all of society approach. Everybody came together and India told the world that we can do it. We didn't have anybody doing PPE, and then now we are exporting that. We are exporting masks. We didn't have a single manufacturer. No ventilators were being manufactured in India, and today we are exporting them. So India can do it. And let's show that in the specialty chemicals, in the plastics industry, we can be the world leaders. We need to come together. We need to ensure that whatever needs to be done should be done. From the government side, I exhort you and I request you that we have the PCPIR investment regions which have been notified. Please come and populate those. They offer very good incentives. There are the plastic parks which have been set up as clusters for the plastic industry. Please tell your units to go and see them, see the facilities that are on offer there, and go ahead, and the infrastructure is ready in most of those places. Partner with CIPET for getting trained manpower. They have such excellent courses, a great name.
very good students coming out, partner with them. Similarly, there is we have the centers of excellence that we support, which are basically national institutions or chemical engineering departments, etc. Tell us your requirements. Tell us what you need to be developed. Tell us what kind of support you need, and we'll take it up through the centers of excellence. Support you need, we're always there to help you under the guidance of Honorable Minister and Honorable MOS. Thank you so much. Plast India 2023, Dr. मनसुख मांडविया जी, मंच पर उपस्थित अजय झा जी, बिमल दुबे जी, जिग्नेश दोषी जी, श्रीमती आरती जी, जयेश रंभिया जी, अशोक गोयल जी, और विशेष करके इस कार्यक्रम में उपस्थित प्लास्टिक जगत के सभी मान्यवर और मीडिया मित्रों, 2-4 मीटिंगों में मैंने जब भी बात करता था तो हमारे बड़े मंत्री जी डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया जी कहते थे कि प्लास्टिक नींद से आंख खुलते ही प्लास्टिक का उपयोगिता प्रारंभ होती है दिन का, और रात होने के तक भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उपयोगिता हमारा जीवन में निरंतर रहता है। तो आज इस सभागृह में उपस्थित आमंत्रित का संख्या यदि अगर हम देखा गया कि प्लास्टिक सेक्टर कितना बड़ा है देश के अंदर, इस पर पता चल जाता है। तो प्लास्टिक देश के अंदर जरूरी भी है और देश इसके अंदर बहुत काम भी कर रहा है। करीब 2000 एक्सपोर्टर्स की भारत में संख्या है, करीब 4 मिलियन एम्प्लॉयमेंट देती है, करीब 30,000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। इसमें लगभग एमएसएमई सेक्टर करीब 85% से ज़्यादा देश के अंदर एमएसएमई सेक्टर इस सेक्टर के अंदर काम कर रही है। करीब 22 मिलियन टन की खपत देश के अंदर प्लास्टिक का आज है, और इसका ग्रोथ हमें देखा गया है अगर 2021 और 22 की कमित कमी हमारा अनुमान 30% की ग्रोथ इस साल प्लास्टिक सेक्टर के अंदर हमें दिख रहा है। प्लास्टिक देश के अंदर बनती भी है और एक्सपोर्ट भी करती है और कुछ इंपोर्ट भी करती है। रिसाइकलेबल प्लास्टिक का ग्रोथ करीब 54 बिलियन $, की आज भारत के अंदर उसका भी इतना पोटेंशियल है, और उसका ग्रोथ करीब 6.5% की ग्रोथ रिसाइकलेबल। वी आर द नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो इसके साथ में पिछला 10 महीने से 2-4 एसोसिएशन वाले कभी पूछते रहते मुझे कि प्लास्टिक का फ्यूचर कैसा होगा। सिंगल यूज का प्लास्टिक के बारे में उन्होंने जिक्र करके ये बात मुझे कहते थे। तो सिंगल यूज प्लास्टिक का कंजम्पशन के बराबर में यदि अगर हम अदर प्रोडक्ट्स का हम देखें तो सिंगल यूज प्लास्टिक इज वेरी नेग्लिजिबल। और यही सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर के अगर हम लोग इधर ही अटक गए तो जो ग्रोथ की संभावना है, इन्वेस्टमेंट की जो संभावना है,
इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो धैर्य चाहिए, कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। इंडस्ट्री होगा अनेक क्षेत्रों के अंदर, उसको ज़रूरत पूरे करने के लिए प्लास्टिक तो ज़रूरी है। तो देश के अंदर प्लास्टिक बहुत बड़ा मार्केट भी है और आने वाला दिनों में भारत एक्सपोर्ट करने का लक्ष्य रख करके इस क्षेत्र के अंदर इन्वेस्टमेंट, प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन और हमारा मंत्रालय के सीपेट लगातार इनोवेशन करती है और आपको सहायता करती है। आज देश के अंदर करीब 10 प्लास्टिक पार्क का भारत सरकार की उसको अनुमति भी दी है। तो कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर करके तो इंडस्ट्री को सहायता करने के दिशा में भारत सरकार कदम उठा रही है। इसके साथ में और सरकार के साथ में जुड़ के इसको काम करने के लिए भी ये काउंसिल निर्माता किया है। तो यही आज का मुझे आमंत्रित करके आपने जो मान सम्मान दिया है, यही 2 बातों के साथ मेरा 2 बात मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुभकामनाएं। My privilege to invite our chief guest, Dr. Mansukh Mandaviya ji, who is the Minister of Health and Family Welfare and Chemicals and Fertilizers. As the Health Minister, he played a crucial role in augmenting the vaccine manufacturing capacity of the country and boosting the COVID-19 vaccination drive. For his efforts in strengthening India's fight against the pandemic and improving the overall healthcare system, Indian Express placed him at number 25 in its list of 100 most powerful Indians in 2022. Dr. Mansukh Bhai Mandaviya ji represented India at G20 Health Ministers meeting in Italy in 2021. He also visited the Indian Pavilion at Expo 2020 in Dubai and invited global investors to invest in India and strengthen the vision of Make in India. As I request him to address and bless us with his guidance and kind support for the growth of this sector and success of Class India 23, he deserves a standing ovation. प्लास्ट इंडिया 2023 लॉन्चिंग के अवसर पर हमारे बीच उपस्थित जिन्होंने फिगर फैक्ट के साथ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ के सिनारियो के बारे में बात कही, इसे मेरे साथी मंत्री भगवंत खुबा जी, हमारे विभाग के सेक्रेटरी आरती आहूजा जी, हमारे मित्र भाई श्री जिग्नेश भाई दोषी, अजय भाई शाह, विमल भाई दुबे, जयेश भाई रामबिया जी, अशोक गोयल जी, सभी इंडस्ट्रीज से आए हुए भाई और बहनों, अभी तक नहीं हुआ है इतना सबसे बड़ा 2023 प्लास्ट इंडिया ऑर्गेनाइज करने हम जा रहे हैं। इस टाइप के कार्यक्रम की आवश्यकता इसलिए होती है, इस इंडिया प्लास्ट के माध्यम से नॉट ओनली फॉर इंडिया बट एंटायर वर्ल्ड जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के प्लेयर यहाँ आएंगे, बेस्ट टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान होगा, आपका संपर्क आपकी डाउनस्ट्रीम, आपकी अपस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के साथ होगा, जो आपकी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने में उपयोगी भी होगा। और इसलिए देश में और दुनिया में इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन, इस टाइप के प्रोग्राम्स, इस टाइप के कार्यक्रम कंटिन्यूस होते रहते हैं। कभी हमारे यहाँ होता है तो दुनिया इंडिया में आती है, और दुनिया में कोई जगह पे होता है तो हम वहाँ जाते हैं। लेकिन ये लर्निंग होती है, सीखना होता है। सीख के, समझ के आगे हम उसमें से कुछ न कुछ करते हैं। उसमें हमारा व्यक्तिगत तौर पर
इंडिविजुअल सेल्फ डेवलपमेंट भी होता है, सेल्फ इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट भी होता है, और उसके साथ देश की इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ती है। इसलिए इस कार्यक्रम का महत्व होता है। और जब यहाँ हम सब इकट्ठे हुए हैं तब हमारे जिग्नेश भाई कह रहे थे कि थोड़ा कुछ मदद मिल जाए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी सरकार, मोदी गवर्नमेंट इज प्रो पुअर, प्रो फार्मर्स बट इंडस्ट्रीज फ्रेंडली गवर्नमेंट। हम मानते हैं, जानते हैं और समझते भी है कि कोई भी देश को आगे बढ़ना है तो उसकी प्राथमिकता होती है अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना, इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना। ये नहीं केवल हम कहते हैं, लेकिन आज से 2000 साल पहले आचार्य चाणक्य ने एक अच्छी बात कही थी कि कोई देश आगे बढ़ना चाहते, कोई राज्य आगे बढ़ना चाहते तो उसकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। तो एक दार्शनिक व्यक्ति ने कहा था कि देश को आगे बढ़ने के लिए अपने राज्य में रहने वाले महाजनों को राज्याश्रय देना चाहिए। यानी कि राज्य में जो महाजन रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, हमारे कारोबारी लोग हैं, उसको मदद करना चाहिए। और सेकंड सेंटेंस में चाणक्य ने कहा था क्यों मदद करनी चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये वेल्थ क्रिएटर होते हैं, इस संपत्ति का सर्जक होते हैं। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन। मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूँ, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ, मैं एक बेस्ट ट्रेडर्स भी हूँ। ये हो भी सकता है, ना भी हो सकता है। और इसलिए इट्स वन टाइप ऑफ स्किल, जिसमें बिजनेस करने की स्किल है, इंडस्ट्रीज चलाने की स्किल है, उसको प्रोत्साहित करने से संपत्ति का सर्जन होता है। तब जो संपत्ति का सर्जन करता है वो देश की तिजोरी में पैसा देता है। तब जाके चाणक्य ने आगे कहा कि राज्य गरीब और किसानों का कल्याण कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात उन्होंने 4 सेंटेंस में कही। तब भी 2000 साल पहले भी गरीब से टैक्स नहीं लिया जाता था, उसको देना होता था। किसान से टैक्स नहीं लिया जाता था, उसको देना जाता था। लेकिन अब कब उसका कल्याण कर पाएंगे, तो जब सरकार की तिजोरी में पैसा आएंगे। तो सरकार की तिजोरी में पैसा कौन डालेंगे, तो वेल्थ क्रिएटर डालेंगे, महाजन डालेंगे। इसलिए हम जानते हैं, समझते हैं कि इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इन नेशन बिल्डिंग के लिए आवश्यक होता है। और इसलिए नॉट ओनली फॉर प्लास्टिक इंडस्ट्रीज बट ऑल टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। मैं फार्मा मिनिस्ट्री देख रहा हूँ, वहाँ फार्मा इंडस्ट्रीज है, केमिकल्स इंडस्ट्रीज है, पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज है। सबसे पहले PLI स्कीम फार्मा इंडस्ट्रीज में मैं लेके आया था, मकसद यही था। मोदी जी ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। आत्मनिर्भर यानी कि उसकी डिफिनेशन केवल इतनी नहीं है कि हम सारी चीज इंडिया में ही बना लें। ग्लोबलाइजेशन का समय है, हमें कुछ इंपोर्ट भी करना पड़ता है, हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन देश की क्रिटिकल रिक्वायरमेंट तो मिनिमम हमारी जो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है वो तो इंडिया में बननी चाहिए। ये उद्देश्य से 53 API आइडेंटिफाई किया था। वो 53 API 80-85% एवं हम इंपोर्ट पर डिपेंडेंट थे और उसको इंडिया में बनाने की आवश्यकता थी। केवल अभी 1.5 साल हुई है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि PLI 1 और PLI 2 दोनों स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। 70% मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो चुका है, इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो रही है। हमें मैन्युफैक्चरिंग भी करना है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना भी है, एक्सपोर्ट भी करना है, एक्सपोर्ट बढ़ाना भी है। और इसलिए सरकार का रोड मैप क्या है। जब आप यहाँ कारोबारी लोग इकट्ठे हुए हैं तो हम कौन से रोड मैप पे आगे बढ़ना चाहते हैं, जिस रोड मैप के आधार पर आप अपनी इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा सकें। उसके लिए क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको इन्वेस्ट करना है, प्लास्टिक इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाना है, तो आपको गवर्नमेंट को कॉम्प्रिहेंसिव दृष्टि से देखना होता है, हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करना होता है। देश की पेट्रोकेमिकल्स रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बेसिक मटेरियल क्रूड होता है, तो क्रूड को रिफाइन करने के लिए क्रैकर चाहिए,
क्रैकर से निकल रही सारी प्रोडक्ट को डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्रीज के रूप में डेवलप करने के लिए आपको पीसीपीआईआर चाहिए। पीसीपीआईआर में नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज, बिग इंडस्ट्रीज भी आए, एमएसएमई भी आए, सब लोग उसमें से अपने जो चाहिए वो चीजों को अपनी आवश्यकता के अनुसार कलेक्ट करके वो अपनी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करें। जब हम इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं तो हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं तो हमें इक्विपमेंट चाहिए। हमारे पास 2 चीज है और 3 चीज नहीं है तो आत्मनिर्भरता का कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप होलिस्टिक अप्रोच से सोचेंगे, यहाँ हमारे खुबा जी उल्लेख कर रहा था कि सुबह में मंत्री जी एक मीटिंग कर रहे थे, मैं सभी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज के साथ बैठा था। हमारा प्रभदास जी यहाँ बैठे हुए और सुबह में मीटिंग में था। तब जाके बात निकली कि मैंने एपीआई में तो पीएलआई स्कीम दिया, मैं केमिकल्स में भी पीएलआई देना चाहता हूं, लेकिन एग्रो केमिकल्स हो, की स्टार्टिंग मटेरियल हो, इंटरमीडिएट हो, फार्मा के लिए और अदर इंडस्ट्रीज के लिए उसका बेसिक मटेरियल क्या है, बेसिक केमिकल्स क्या है, तो उसमें से 80% बेसिक केमिकल्स, बेसिक मटेरियल पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज से निकलता है। तो क्यों हम बेसिक मटेरियल पर पीएलआई लाएं? तो उसमें से पेट्रोकेमिकल, उसमें से एग्रो केमिकल्स इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी, उसमें से एपीआई इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी, उसमें से फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज भी डेवलप होगी। बेसिक चीजों को पकड़ के, और दूसरा ये इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सरल है भाई, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज है, तो वही हम उसको टास्क दे भी क्या दिक्कत है? जब हम रोड मैप बनाते हैं तब किसके लिए बना रहे हैं? इंडस्ट्रीज के लिए बनाना है। बोलो मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि भाई हम एक टास्क फोर्स बना लेते हैं। किसने कहा? इंडस्ट्रीज ने कहा कि हम एक टास्क फोर्स बना लेते हैं और हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये करना है तो हमें क्या चाहिए। आपको पॉलिसी रिफॉर्म चाहिए, वी आर रेडी सपोर्ट टू यू। आपको पीएलआई स्कीम चाहिए, वी आर रेडी सपोर्ट टू यू। वैसे ही तरह से मैं जिग्नेश भाई को बता रहा था, मेरे बगल में बैठे बैठे बोल रहे थे, तो मैंने कहा कि आप एक ग्रुप बनाओ 4-5-6 लोगों का, जरूरी हो तो मैं मेरा एक ऑफिसर आपको दे दूंगा। आप 10-15 दिन में एक बार बैठो, 10-15 दिन में एक बार बैठ के आपका रोड मैप तैयार करो कि क्या मदद चाहिए, किस टाइप की मदद चाहिए। आपने बोल दिया कि हमें यहाँ इस टाइप की इंसेंटिव दो, कैसे देना, किस तरह से देना, हमारी ये जिम्मेवारी है कि मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट सेल्फ सस्टेन होना चाहिए, मेरा इंडस्ट्रियलिस्ट कॉम्पिटिटिव होना चाहिए। मैं कितना भी यहाँ भाषण दूं, लेकिन मैं आपको यहाँ अच्छी बात हुई कि अड़ोस पड़ोस के देश में, नॉट ओनली फॉर नेबरिंग कंट्री, मैं तो चाहता हूँ कि वर्ल्ड के साथ हम कंपटीशन कर पाएंगे क्या? मुझे मेरे देश की इंडस्ट्रीज को वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव बनाना है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए 10 बिंदु आइडेंटिफाई करके हमें दे सकते हैं क्या आप? जो आपकी ओर से 10 पॉइंट आएंगे कि ये करने से आपका हम वर्ल्ड के साथ कंपटीशन में टिक जाएंगे, हम ये करने के लिए तैयार हैं, हम ये करेंगे। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपकी दूसरी डिमांड, गवर्नमेंट का अप्रोच क्या है? हमारा अप्रोच है कि हम कोई पॉलिसी फॉर्म करते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं करेंगे, हम लॉन्ग टर्म के लिए पॉलिसी तय करेंगे, जिस पॉलिसी को देख के आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तब आपको पता हो कि इतने समय में हमारा रिइंबर्समेंट हो जाएगा, हम सेल्फ सस्टेन हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज का जो खर्च हो उसमें से पास हो जाएंगे। मिनिमम ये समय के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट एश्योरेंस होना ही चाहिए। सीपेट को अप्रोच करना है इंडस्ट्रीज को। मैं समझता हूँ कि एमएसएमई है, छोटी इंडस्ट्रीज है, उसको कोई सोल्यूशन चाहिए, कोई रिसर्च करवाना है, वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जाके सीपेट को प्रोजेक्ट देके आए कि आप मुझे प्रोजेक्ट करके दो, आप मुझे रिसर्च करके दो, आप मुझे सॉल्यूशन दो, तो सीपेट आपको सॉल्यूशन देंगे। और इसलिए सीपेट को भी सपोर्ट मिले, आपकी भी रिक्वायरमेंट पूरी हो और उसमें दोनों की भागीदारी हो जाए। मैंने उसके इसलिए ऐसे रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, तक आपका इन्वेस्ट होता है, आपका खर्च होता है। एकेडेमिया इंडस्ट्रीज को लिंकेज करके
ऐसी कौन सी रिसर्च पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें भारत सरकार आपको सपोर्ट करे? क्या एक ऐसा ग्रुप इंडस्ट्रीज की ओर से ना बने, 4-5 लोगों की टीम बने, वो गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के साथ बैठे, अलग अलग इस टाइप की रिसर्च पॉलिसी का स्टडी करे? ऐसी एक रिसर्च पॉलिसी हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में क्यों ना हो? मेरी अपेक्षा है कि ये दिशा में भी हम काम करें। मैं मानता हूँ, मोदी जी बार बार कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट का ये अप्रोच है, कंप्लायंस बर्डन हम कैसे ख़त्म करें, सेल्फ सर्टिफिकेशन पर हम कैसे जाएं। हम हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट पर भरोसा करना चाहते हैं, सारे चीज़ में क्रिमिनल केस हो जाए, थोड़ी सी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज में पोल्यूशन का इश्यू होता है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालें, ऐसी टेक्नोलॉजी रिसर्च में हम कैसे जोर दें, और जब हम ऐसी इंडस्ट्री चलाते हैं उसमें कम से कम पोल्यूशन कैसे हो, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री का रूल्स रेगुलेशन क्या है, किस टाइप का रूल्स रेगुलेशन में रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, सिंगल यूज प्लास्टिक का कोई ना कोई सोल्यूशन आज के दिन में आवश्यक है, लेकिन सिंगल यूज प्लास्टिक हम बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन तो आवश्यक है ही। तो कैसा सिंगल यूज प्लास्टिक होना चाहिए? ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए। ये करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए, बोलना आपको है, बताना आपको, हमें कहना है कि भाई सरकार को ये करने की आवश्यकता है, जरा करिए। और ये करने के लिए और करवाने के लिए एक सिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। हमें सिस्टम क्रिएट करनी है। सामने आया है, ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया, एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया, तो आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए, तो कोई मेरे बगल में बैठे, आप आपस में बैठे, उसमें चर्चा होगी। मैं 2 विषय, आप 3-4 विषय आपके सामने रख के जाऊंगा, तो उसके पर भी आप बातचीत करके अपनी कार्य योजना बनाएंगे। ये सब इस टाइप के कार्यक्रम में हमें अवसर प्राप्त होता है, और मैं मानता हूं कि प्लास्ट इंडिया 2023 वो इस तरह का हो जिसमें देश आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मना रहा है, तब मोदी जी ने एक बात कही है। अब बहुत सुना है भाई, हम कार्यक्रम करते हैं, पॉलिसी निकालते हैं, एकदम शॉर्ट टर्म, कल का सोचते हैं, हमने कभी परसों का सोचा ही नहीं, बाद में दुनिया के पीछे भागने का हमारा अवसर होता है। क्या देश में हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का 25 साल का रोड मैप हम तय कर सकते हैं? क्या 25 साल में हमारी इंडस्ट्रीज को हमें कहाँ ले जाना है? कौन सी टेक्नोलॉजी 25 साल में होगी जो इंडिया में ही बननी चाहिए? कौन सा हमारा पॉलिसी रिफॉर्म होना चाहिए? कौन सी इंडस्ट्रीज, किस टाइप का प्रोडक्शन, इसके लिए कौन सी इकोसिस्टम होनी चाहिए? पीसीपीआईआर के लिए मैंने आरती जी को कहा है कि स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करके आज जो पीसीपीआईआर है हम सक्सेस नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए? सरकार जो करती है वो सब ठीक ही हो गया, ऐसा यहाँ बोलने की आवश्यकता नहीं है भाई। स्वयं इंडस्ट्री से आपको और मेरे से ज़्यादा विशेष एक्सपीरियंस होगा, कई दिक्कतें आपने झेली होगी। छोटे छोटे ग्रुप बना के, जिसमें उसको, जिस लोगों को उसमें रुचि है, एक्सपर्ट लोग को उसमें शामिल करके एक बार वर्कआउट करके बाद में हम आपके साथ बैठते हैं, और उसके आधार पर हमें 25 साल का, जब देश आज़ादी का किस टाइप की होनी चाहिए, ऐसा विजन तैयार करके एक ऐसा कार्यक्रम करें जिस कार्यक्रम में हमें प्रेजेंटेशन को सारी दुनिया के सामने रखें कि इंडिया की आज के 25 साल के बाद हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्रीज, हमारी पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज इस टाइप की होगी, और हम यहाँ जाने के लिए रेडी है। उसके लिए क्या क्या रिफॉर्म करने की आवश्यकता है, पाथवे कौन सा होना चाहिए, सारा विषय पर कंसल्टेशन करके हम आगे बढ़े, ऐसी मेरी आपसे अपेक्षा है। आप सब लोगों को, मुझे लगता है कि कोविड क्राइसिस के बाद आप फिजिकली पहली बार मिले होंगे, और ये पहली बार हुआ, मैंने देखा कि कई लोगों को खड़ा रहना पड़ा, बैठना का भी जगह नहीं मिली, इतनी संख्या। मेरी
ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। कहाँ लगाएंगे? ये दिवाड़ा राजस्थान Appreciate Shamya and should broadcast to Secretary Ms. Aarti Ahuja ji. Shri Vikram Mathurya ji to GM ITPO Shri Vimal Kumar ji Dubey. Mr. M.S. Batush to Shri Anil Goyal of Shapurji Kanaji. Shri Arvind Goenka ji. Thank you. So I request our Honorable Minister to inaugurate. पीछे and have helped mankind to evolve to its current state of development. Plastics are an indispensable and enriching part of equipment and recently in 3D printing and robotics. India is one of the fastest growing global economies and has recorded 8.4% growth in GDP in the year 2020-2021. Indian plastics industry is making huge strides thanks to good investment climate, favorable government policies, cutting-edge R&D, a favorable demographics with a young workforce leading to growth in consumer and industrial demand. Since its invention in the early 1900s, plastics have transformed the world. Its diverse applications and unparalleled utility make plastics a great investment opportunity. Plastics impacts our life in every moment and makes our life enjoyable. Plastics have been a great savior in mankind's battle against COVID-19 and helped us develop PPE kits, face masks, syringes, and other medical products in the shortest possible time. India took a major initiative to become Atmanirbhar for tackling the pandemic, and now the economy has fully recovered with great growth prospects. The production and consumption of plastics has increased manifold in India. In 1990, the consumption of plastics was merely 0.9 million metric tons. This has grown to 22 million metric tons in 2021-2022 and shall exponentially rise to 28 million metric tons by 2025. With the growing consumption, we also have the responsibility of waste generating. Government policies and industry efforts are working towards a sustainable growth for the industry. In 2018, the overall size of the Indian plastics industry was $73 billion, and this is expected to reach $102 billion by 2025.
India is a triennial celebration of plastics, where thought leaders and industry partners congregate to envisage a beautiful future and build a better world for future generations. At Plast India, global leaders of the plastic industry convene together and showcase the latest innovations in the world of plastics and expand their business alliances. With national progress through plastics in mind, Plast India Foundation was established in 1987. It is the apex body of major associations, organizations, and institutions connected with plastics with common objective. The foundation is committed to the nation's growth with the development of plastic sector. To achieve this goal, Plast India Foundation has been organizing the Plast India exhibition since 1990 and have successfully organized 10 editions, establishing itself as top plastic show of the world. The previous 2018 edition had 1,800 exhibitors from 44 countries with a visitor footfall of over 245,000 from 103 countries. 1,200 reverse buyer-seller meetings were held with overseas buyers and exhibitors, and the show generated approximately $120 million worth of business. The event was a mega success, and we are confident to outperform these numbers in 2023. The largest in India and the third largest plastics exhibition in the world is back in the nation's capital, New Delhi. The 11th Plast India exhibition will be held from 1st to 5th February 2023. The newly revamped International Exhibition and Convention Center at Pragati Maidan is the home for Plast India 2023. Plast India 2023 is glad to have Reliance Industries Limited and Loya Corn as platinum sponsors, and Mamata Machinery, Supreme Industries, and HMEL as gold sponsors. The exhibition is supported by Department of Chemicals and Petrochemicals, Make in India, and Swachh Bharat. The mega exhibition center, having more than 4 million square feet of built-up area, Advisory Board of Plast India Foundation, Shri Ashok Goyal, to share his vision about Plast India 23. He is the chairman of Ashok Goyal Trust and former MD of SL Propack, the largest laminated tube producer of the world. आदरणीय व्यासपीठ, मैं शायद गुस्ताखी नहीं करना चाहता हूँ माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर के बोलने के बाद. आई थिंक इट्स ओनली द vote of thanks, I guess. But just very briefly, I thank you, sir, for coming and blessing us, and also setting the roadmap for the industry. And I do wish Plast India 2023 to be a huge success. Thank you very much. Jai Hind. Jay Shamya ji, the treasurer of Plast India Foundation, to give the vote of thanks. He is the former president of Atma and MD of Trailsons. Dignitaries on dais and industry friends, it's really pleasure to be amongst fraternity after a long time, physically meeting everybody, and everybody is enjoying their brotherhood. और ये brotherhood का चमत्कार है मनसुख भाई कि Plast India is world's largest trade show, built out of people working on honorary basis. इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के साथ, इंडस्ट्री के द्वारा. बाकी के इससे जो बड़े 2 ट्रेड शो है दुनिया में, वो कमर्शियल है. दिस इज नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर इंडस्ट्री. और जैसे आरती आहूजा जी ने बताया कि माइक्रो इंडस्ट्री और स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए करना चाहिए, तो हमारे पैनल लगाई है विच इज़ वेरी क्लोज टू अवर हार्ट. 500 माइक्रो इंडस्ट्री को हम मात्र 18,000 रुपये में हम वहाँ एग्जीबिशन स्पेस दे रहे हैं, विच इज़ पीनट्स. मतलब जो सिर्फ इंडस्ट्री एग्जीबिशन विजिट करने की ख्वाहिश रखते थे, उनको हम एग्जीबिटर बनने का मौका दे रहे हैं. तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग व्हाट प्लास्ट इंडिया इज डूइंग. सपोर्टिंग प्लास्ट इंडिया, सो नाइस, सो बिग एंड सो ग्रेट.
सो दैट इंडिया के लिए हम सब मिलके कुछ कर सकें, देश को स्ट्रांग बना सकें। ये भावना के साथ हमारी पूरी टीम इसमें काफ़ी मेहनत कर रही है एंड वी आर लकी। पहले जो टीमों ने काम किया और प्लास्ट इंडिया को ये मुकाम पे पहुंचाया, सबका शुक्रिया, सबका धन्यवाद। आप रियली शुक्रगुजार हैं हमारे मनसुख भाई मांडविया जी के। आज उन्होंने जो हौसला अफजाई की कि हम सुनते हैं, आपको क्या चाहिए बताइए, हम सुनना चाहते हैं। सर, इट इज़ रियली हमारे कुछ सुनने वाले हैं, हमारी पेरेंट मिनिस्ट्री हमारे साथ है, वो हमारे को जो बल देता है तो हमारा साहस बढ़ाता है। थैंक यू सो मच हमारा साहस बढ़ाने के लिए। शोभा जी, थैंक यू सो मच। आपने जो डिटेल में जो बताया कि प्लास्टिक सुबह से शाम तक उसके बगैर ज़िंदगी चल नहीं सकती, आपने रियलिटी सबके सामने लाया। थैंक यू सो मच। आरती जी ने बातों बातों में यहाँ पर आने से कि प्लास्टिक के अगेंस्ट जो भी लोगों की गलत फहमियाँ हैं उसको पहले ये हेल्थ मिनिस्ट्री में रह चुकी है, तो उसकी हेल्प उसके माध्यम से रिसर्च द्वारा ये हम साबित कर सकते हैं कि प्लास्टिक इज़ नॉट सो बैड, प्लास्टिक इज़ गुड, इज इज सेफ मटेरियल टू यूज़। तो उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, सबके शुक्रगुजार हैं हम यहाँ पर ये एग्जीबिशन के सक्सेस बनाने के लिए जो NEC टीम, जो हमारी मैनेजिंग कमेटी हमारे साथ है, जो अपने पर्सनल निजी लाइफ और बिजनेस से टाइम निकाल कर ये इसको मजबूत करने के लिए साथ काम कर रहे हैं, सबका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अगर सर आप परमिट करें तो हमारी ऑनरी टीम वुड बी रियली हैप्पी। टीम मेंबर और मैनेजिंग कमेटी मेंबर ऑफ प्लास्ट इंडिया, प्लीज कम फॉरवर्ड क्विकली बिकॉज इनकी और कोई एंगेजमेंट है, इनको जाना है, सो डोंट प्लीज कम क्विकली। पकड़ा ना मुझे।